In my childhood, okay, mother, father, both of them employees, three elder sisters, they're all employees, my brothers-in-law, they're all employees, okay, all, because that's how I grew up. And I was all set in my mind to become an employee, because that's the world I know. That's what happens here, right? I will explain to you. If you take a human being's lifespan's example and divide it into 4 equal quadrants, it's like 0 to 15 years, first quadrant, 15 to 30, second, and third quadrant, 30 to 45, and the fourth, 45 and beyond. What happens in the first quadrant? पहला quadrant में जो क्या होता है बचपन में 0 to 15 till the time we enter the college. What happens? See, that's what happened with me. I believe, I assume that the same happened with you people also. You just analyze. क्या होता है बचपन से पहला quadrant का main thing ये होता है कि observe करते हैं ना हम बचपन से, हम observe करते हैं एक दुनिया इधर हमारा दिमाग में form हो जाता है through our observations, through our experiences, right? We form a world right here, and that becomes our world, and we start seeing the world through this world, right? है कि नहीं? That's what happened to me, because बचपन से मुझे इतने बार कहा गया घर पे कि नरेन तुझे अच्छी तरह पढ़ के get good marks in the school, get good grades, get good rank, and get into a good college, ultimately get a good job. Get a good job. वो good job मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि job good नहीं है. जो good होगा वो job नहीं हो सकता, जो job होगा वो good नहीं हो सकता. है कि नहीं? पूरा opposite terms है. Good job. You show me some job holder who says that, okay, man, my job is awesome. No one would say that. Because it's but क्या होता है बचपन से 0 to 15 बचपन से मेरे माँ जी यही बोली, मेरे पिताजी यही बोला, and they even show some examples. They tell that नरेन तुम्हें उस कजिन जैसा बनना है, उन जैसा बनना है. वो क्या होगा? वो कुछ यूएस अमेरिका में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा. मुझे बचपन से उसका रोल मॉडल मेरा दिमाग में घुस जाता है. मुझे किसी भी तरह उन जैसा बनना है, किसी भी तरह मुझे. हम एक पल भी नहीं सोचता अगर उन जैसा बन लिया तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या फाइट मारना पड़ेगा, क्या पिक्चर देखना पड़ेगा, कुछ नहीं सोचता. even my mom doesn't know. All she knows is he is in America doing a software job. तुमको भी वही करना है. And यही होता है ना. And प्रेशर हो जाता है. It's like ये बाजू वाला अमेरिका जा रहा है, ऊपर वाला अमेरिका ऑलरेडी गया, तो मुझे भी जाना पड़ा. बीड के साथ फॉलो करना पड़ा. Because see, we cannot take all these instructions, all these experiences, we cannot take them very lightly. Because एक बुक में पढ़ा मैं it's a book on neuro linguistic programming, NLP. उसमें लिखा है कि जो भी experiences repeatedly हम gain करते हैं, they form concrete structures in our mind. They form concrete structures. ये हमारा दिमाग होगा तो ये दिमाग में whatever experiences we gain, it develops into a structure. Structure का मतलब आपको मालूम होगा. It's like a building, whatever, okay? जो भी experience हम gain करते हैं, it forms structures in our mind. And unfortunately, बचपन से जो भी experience मैं gain किया, वो सब एक average structures develop किया मेरे mind पे. And उसी structure ने मुझको एक belief system दिया, एक average belief system. And उसी system से मैं दुनिया को देखता रहा and उसी को सच मानता रहा. I'll tell you an example here. For example, एक नेगेटिव बंदा है जिसके अंदर पूरा नेगेटिव स्ट्रक्चर से, पूरा नेगेटिव बिलीव सिस्टम है. बिकॉज ऑफ हिज नेगेटिव पेसिमिस्टिक एटीट्यूड वो एक दिन उसका जॉब भी चला जाता है. वो पूरा निराश होके पूरा डिप्रेशन में एक बीच में ऐसा बैठा होता है. ओके, एंड उसके बाजू में 10 feet फ्रॉम हिम देयर वुड बी अ लवर कपल सिटिंग एंजॉयिंग हैविंग फन. And you go to that person first, okay? For example, you go to that depressed fellow who was fired just few hours back, okay? You go to him and you ask him, क्या भाई साहब मौसम कैसा है? क्या बोलेगा?
क्या मौसम है यार, पूरा इरिटेशन है, पूरा ऑफिस में बॉस इरिटेट कर दिया तो वापस आई मीन नौकरी भी गया, इधर आके बैठा तो ये टाइड्स, ये सागर, आई मीन ये चिड़ी, आई मीन ये बर्ड्स, ये सब इरिटेट कर रहा है। उसके ऊपर तू है, अभी तू आया इरिटेट करने, जा जा, है कि नहीं? तो डांटेगा आपको। तो उधर से 10 फीट जाके दूसरा आदमी है ना, लवर कपुल जो एंजॉय कर रहे हैं, उसके पास जाके यही क्वेश्चन पूछिएगा आप, क्या क्या भाई साहब, क्या बहन जी, कैसा है मौसम? यू नो व्हाट दे टेल, क्या मौसम है यार, ऐसे मौसम में हमें जी चाहते कि इधर ही ऐसे ही मर जाए, है कि नहीं? वाह क्या है मौसम, ये सागर, ये बर्ड्स, ऑसम एंड ब्यूटीफुल, है कि नहीं? कुछ लोग विजुअलाइज कर रहे हैं शायद, बीच के किनारे चले गए हैं वापस आ जा वापस लवर कपुल के आई एम टेलिंग यू, आई मीन इस दोनों एग्जाम्पल में ये डिप्रेस्ड फेलो का विजन है, ये लवर कपुल का विजन है। ये दोनों अपना अपना आई मीन एक्सप्रेशन दे रहे हैं मौसम के बारे में। क्या सच है दोनों में, क्या सच है? दोनों सच है। इसके हिसाब से वो सच है, बिकॉज ही इज लुकिंग द मौसम थ्रू हिज कॉन्क्रीट बिलीफ सिस्टम एंड दे आर लुकिंग द वर्ल्ड थ्रू देयर बिलीफ सिस्टम। द सेम इज, दोनों सच है यार। द सेम, 1 मिनट, द सेम इज द केस। अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे बहुत टफ है यार, हम नहीं कर सकते, सच है ये। समझ में है ना आपको? अगर कोई नए बैठा है तो इट्स लाइक दिस, वी वेंट डायमंड, अभी डायमंड बन के आपके सामने खड़े हैं। अगर मुश्किल है, फाइट मारना पड़ेगा, तो व्हाई वुड वी बी सो हैप्पी मैन? बिकॉज इन इट यू शुड लुक द बिजनेस थ्रू आवर आइज, राइट? इट्स सो सिंपल। सच है, आई मीन सच ये है कि सच एक ही है, सच आप है, दैट्स इट। सच आपका दिमाग है। Because see, the ultimate, that's the problem. Ultimate problem is our observations and our experiences since our childhood, they don't go anywhere. They get into our mind and they form a belief system. And that belief system since my childhood gave me one aspiration to get a job. That's it. Dream, ये सब चीज तो नहीं मालूम था, सच बता रहा हूँ, ड्रीम का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम था। All I wanted was to get a job, get a job, get a job. That's it. With that belief system, which was all ready, all set to make me just average, I entered the second quadrant in life, 15 to 30. And because already belief system तो set हो गया ना, उस I mean 15 to 30 में मैं इंजीनियरिंग कोर्स लिया। उसके बाद as I told you, सब US जा रहे थे, तो मैं भी अमेरिका चला गया। because it was not a dream, it was not a dream, it was just an aspiration. because वही होता है, हम एक why did I go to America? Because I wanted to become like my neighbor. वो भी अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मेरे माँ जी भी बोला कि तुम्हें भी जाना है। उसके बुक से ही पढ़ा मैं, सेम बुक ले मुझे दे के गया, उसी ही पढ़ के वही एग्जाम लेके उसी यूनिवर्सिटी पे गया। कुछ कभी भी नहीं सोचता है कि यार वो गया है, ओके क्या कर रहा है उधर, क्या मिल रहा है, क्या मुझे भी वो सब चाहिए, कुछ भी नहीं सोचते। वो गया, मुझे जाना है, दैट्स इट। ऐसे ही गया हो। आई मीन वी हैव सम, वी अज्यूम सम zeros to be heroes, and we ultimately become those heroes, and ultimately we are zeros because basically they are a zero, right? तो हमको that's our problem. We have some role models in our mind. कुछ नौकरी कर रहे हैं, मुझे उन जैसे बने, वो डॉक्टर जैसा बने, वो सब कुछ बने। पहले आप एक बार 5 मिनट्स आप रुक के सोचिए क्या है उसके, आई मीन उसका सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो सब आप सोचिए। ओके, उसके बाद I was in US. I was all set to get into a job with all these false belief systems in my mind, because I was thinking, okay, that is what is life, getting a job. Okay, at that juncture, my upline from America, okay, he called me in 2000. This happened in 2001,
April, May. Okay, he called me and he literally forced me into a seminar like this. He literally forced me. जब वो फोन किया मुझे सेमिनार में भेजने के लिए, तो मैं इतना एक्सक्यूजेस लिया, बिकॉज पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है ना अंदर, इतना एक्सक्यूज नहीं दीपक मैं नहीं जा सकता, मैं मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे एग्जाम्स है, कुछ नहीं सुना, वो एक ही बात बोला, तुझे जाना है, दैट्स इट. आई वाज सो रिलक्टेंटली, बहुत मुश्किल से मैं ये सेमिनार पे गया, एग्जैक्टली 2001 रिचमंड वर्जीनिया में. तो सेमिनार 1.5 day सेमिनार, इट वाज एंटायर सैटरडे एंड हाफ डे, आई मीन संडे, पूरा 1.5 day. दैट्स व्हाट आई टेल टू एवरीवन, दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट, दोस वर द लाइफ चेंजिंग डेज. कैसे चेंज हुआ मेरा लाइफ, क्या हुआ असल में, क्या हुआ कि जो कुछ भी मेरे अंदर डाला 20 years जो कुछ भी मेरे अंदर अपार्टमेंट्स या स्ट्रक्चर्स डाल दिया था ये दुनिया ने, एक दिन में पूरा अपार्टमेंट्स को डेमोलिश कर दिया वो 1.5 day में. सब that's what we call rebirth. That's what we call rebirth. पूरा डिलीट कर दिया, पूरा whatever I learned in 20 years I unlearned in almost 24 hours. It's very powerful concept. That's why we recommend these functions so strongly. We work very hard for this kind of function, because these are the places where the rebirth happens. What does that mean? A new belief system comes into your mind. New belief system. Because उस सेमिनार के बाद मेरा पूरा एस्पिरेशंस ये सब तो पूरा रीसेट हो गया. आई स्टार्टेड ड्रीमिंग, बिकॉज मुझे मालूम हो गया, अरे यार अगर रोल मॉडल्स कुछ किसी को रखना है तो इन लोगों को रखना है, कुछ नेबर वालों को नहीं, है कि नहीं? आई मीन अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो समवन, अल्टीमेटली वी हैव टू कॉपी समवन. नो पॉइंट इन कॉपिंग समवन हु इज fighting to become average, who is struggling entire life to become average. No point in copying them, right? We have to copy. Let us copy the real heroes. That's what I understood in that seminar, man. I got a new belief system. I wanted to get all the things which those people have got. So ultimately there's only one option. I got to do what those people were doing, and that is Amway business. That I took a decision, पूरा हिल गया था, because I told you that all पूरा नया beliefs आ गया, life पे. I thought in 3-4 years, man, I would become a multi-millionaire. ये सब सोच के पूरा रिचमंड से न्यूयॉर्क, पॉट्सडैम, मेरा यूनिवर्सिटी तक almost 9 hour ड्राइव पूरा बस पे पूरा सोच रहा था, पूरा हिल गया था. ये पूरा नया बिलीव सिस्टम, नया बर्थ जैसा लग रहा था. रूम आते ही, अपार्टमेंट आते ही मेरे दोस्त सो रहा था, उसको बहुत जोर से उठाया. उठते ही वो बोला कि अरे यार आ गया तू. मैं बोला कि एक ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स में लेक्चर दिया. यार हो गया यार, हमारी जिंदगी अभी सेट है, आज तक हम जो कुछ भी मान रहे हैं वो सब झूठे, सब कुछ मैं बोला कि ऐसा सपने है, वो सपने हम कुछ करेंगे सब. यू नो व्हाट, 5 मिनट्स के बाद वो क्या बोला, अरे यार बकवास बंद कर, सो जा. वही बोला. देन आई अंडरस्टूड, वो सच है. उसका अपार्टमेंट स्टिल बाकी है ना. हाँ, उसके एंगल से सब बकवास है, बिकॉज उसका अपार्टमेंट बिफोर क्राइस्ट है. हाँ, पूरा डेमोलिश्ड अपार्टमेंट्स. एंड आई वॉज द वन हु वॉज बॉर्न, right? You have to understand that. You go and talk to your neighbor, he says no, it doesn't work. You have to understand one thing, he has that old rotten belief system which is almost dead, and he would be seeing the world through that eyes. Why should we give a respect, or why should we care a heck about that belief system? It's so simple, guys. If someone says Amway is not working, it doesn't work, it's through their eyes they are telling that. It's not through your and my eyes, right? It's so simple. Just take it light. Right? That's what I did. And उसके बाद मैं बहुत कोशिश किया उधर कुछ लोगों से बात करने के लिए. वो लोग बहुत नेगेटिव थे. एंड इट्स लाइक इट हैपेंस ना. हम एक सपने के बारे में कुछ दोस्त को बोलने से पहले ही वो क्या करते हैं, एक हथियार लेके सपने को मार देते हैं. बाहर लोग घूम रहे हैं, हमारे ड्रीम्स को किल करने वाले हथियार लेके घूम रहे हैं बाहर. आप अपने सपने के, यार एक ड्रीम में 2-3 साल में क्या करेगा तू, चले गया.
At that time the system came to my support, because it's like oxygen जितना necessary है हमारे life के लिए, एक dream के लिए भी एक encouragement necessary है, very important for any person. Someone, there should be someone, something, some support patting your shoulder. You can do it, look at us, we are doing, let us do it. There should be some support. That's where the Brit worldwide system comes into picture. That's where your upline comes into picture. We are not gods. We need encouragement, desperate encouragement, always. Even now, a phone call from my upline Manipal Reddy cannot be equal to anything. A good, like Naren, you did a great job. That is excellent. We need encouragement. So I understood, and I kept in constant touch with my uplines. Let me tell you, that's what I kept in constant touch with my upline dreamers who are achieving. That transformed me into a dreamer. And I thought, okay, I will definitely achieve something in the business. I took a decision, came back to India in 2001 to build the business big time in India. You can expect what would have happened. जब मैं वापस आया इंडिया, घर वापस आए तो मेरा माँ, पिताजी सब मंगल हारती लेके खड़े थे. आजा तेरे लिए वेट कर रहे हैं. जा किट लेके जा, बिजनेस कर. ऐसा नहीं हुआ, रिवर्स हुआ. समझ में ना, एक सुनामी हुआ था घर पे. Because see, एक कर्जे पे मुझे भेजा था. कर्जे मतलब डेट से, एजुकेशन लोन. माँ पिताजी दोनों को सैलरी में कटिंग होता था. तो they were so tense. They were like, why did you come back from America? बहुत डांटा था मुझे. सब ऑलमोस्ट पूरा रिश्तेदारों को बुला के क्लोज्ड डोर काउंसलिंग किया मुझे, एज इफ मैं पागल हो गया था. क्लोज्ड डोर, सारा डोर्स क्लोज करके काउंसलिंग, 1-2 दिन का काउंसलिंग. एक मामा जी इधर, एक मौसी जी इधर, एक दोस्त इधर बैठा होगा. वो सब बोलते हैं, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, पागल हो गया क्या, 4000 का बिजनेस है, क्या करेगा तू उधर इतना. 2 days, almost 48 hours, they shut me in the house trying to do something. बट कुछ असर नहीं पड़ा. कुछ असर नहीं पड़ा. वन मिनट, क्योंकि मैं जानता था कि वो सब सच है. उनके अपार्टमेंट से सच है, उसके दिमाग से सच है, एंड मेरे दिमाग से मैं सच हूं. It's so simple. You understand that, guys? वो भी सच था, मैं भी सच था, बट मेरा सच बेहतर था. सिंपल. एंड वो बोल रहे थे, मैं सुन नहीं रहा था. ऐसे उसका मुंह ऐसा दिख रहा था, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था. तो what happens? Nothing happened. उसके बाद वो मुझे छोड़ दिया. उसके अलावा क्या कर सकते हैं. अमेरिका आने का टिकट का मनी भी नहीं है मुझे लेने के लिए, राइट. तो उधर ही छोड़ दिया. तो मैं मेरे पिताजी से टाइम मांगा कि पिताजी 1 year का टाइम दे दो मुझे. 1 year. आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम नॉट आस्किंग यू ए लाइफ टाइम, राइट. I understand that you are paying the loan amount from your salary. I'll repay the loan amount, whatever, but give me 1 year time. एक साल में कुछ भी मैं प्रूव नहीं किया तो वापस चला जाऊंगा. एंड पिताजी को मालूम था, बिकॉज दे आर एजुकेटेड पीपल, दे नो दैट द अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम इज फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट लाइक द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो मेरा प्रोफेसर से परमिशन ले लिया अमेरिका से. 1 साल में इधर जस्ट प्रूव करने के लिए रुका. उसी साल में प्लैटिनम चला गया. दैट्स इट. उसी साल में प्लैटिनम चला गया. Even don't think, even after I went platinum, they were very excited. No, it was not like, because when I went platinum, I was making around 30,000-40,000 depending on my structure. तो उन लोगों को कंपेयर करते हैं ना, अगर तो अमेरिका में होता तो इतना डॉलर कमाते, डॉलर into 40, कैलकुलेटर लेते हैं ना हाथ में. Because 30,000-40,000 did not excite them. And again, at that time, they were all such again. Even see, I was looking at the future, because now they know it, guys. They know deep inside the heart that who are the people who are absolutely proud of Naren right now? My mom and dad.
Right now, they are the most happiest parents, right? Because they waited, because see, joke, that's what happens. मैं पूरा reason, because एक बार commit हो गए, एक बार सच को देख लिया, एक बार belief system पैदा हुआ, नया belief system, तो that's it, that's over. सब कुछ खत्म हो गया, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता आपका ड्रीम को, कुछ भी कोई भी. इट्स लाइक नो सिचुएशन, नो ट्रेजेडी, नो कॉमेडी, नो हैप्पीनेस, नो sorrow, नथिंग. even death cannot come in between you and your dream. कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज एक बार वो हो गया तो हो गया, दैट्स इट. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दैट न्यू बिलीफ सिस्टम. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दैट न्यू अपार्टमेंट. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दैट new thought process. That's it. That's what I did. And entire process mein, why was I so stubborn? Because I believed in my fire inside. I believed in my intensity inside. Because the dream cannot keep quiet. It will create that fire inside you. That's what is a dream. वही को ड्रीम बोलते हैं. ड्रीम वही होता है जो I mean देखने में कुछ इम्पॉसिबल लगना चाहिए. इम्पॉसिबल आपको लगना चाहिए कि हम ये अचीव कर सकते हैं या नहीं, कुछ डर होना चाहिए. उसी को ड्रीम कहते हैं. उसी को ड्रीम कहते हैं. अगर आप चेक दे इंडिया मूवी देखा है, उस मूवी में शाहरुख कबीर खान, ही कम्स एज इंडियन वुमेन हॉकी कोच, राइट? तो वो कोच के लिए अपॉइंट हो जाता है. एंड उसका फ्रेंड उसे पूछता है, क्या यार इतने साल बाद आके तू ये हॉकी टीम का कोच क्यों बना? तो वो बोलता है कि मुझे ये इंडियन वुमेन हॉकी टीम को वर्ल्ड कप दिलाना है. तो दोस्त हंस के बोलता है कि अरे यार ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल. तो शाहरुख खान बोलता है कि वही तो करना है यार, वही तो करना है. जो मुमकिन है उसको करने में क्या है? that's what I understood. ये ड्रीम है विच इज जॉब में ये तो सोच भी नहीं सकते, ये बिजनेस में भी ये बड़ा है. And there is a possibility, and every second I was fired up to achieve those dreams. Fired up, enthusiastic. I was passionate, and that's how I became successful, guys. Every second I was, and all the people who were trying to pull me back, they were nothing in front of my fire. That force was nothing in front of my internal force. You have to understand. You have to get intensified. You have to get experience that dream power, dream force inside you. I read in a book that when a rocket gets ready for a launch, धरती बोलती है रॉकेट से, क्या किधर जा रहे है तू? ऊपर जाएगी, सबको देखो, सब जा रहे हैं क्या? तू कैसे जा सकते हैं? रॉकेट कुछ नहीं बोलेगी, बिकॉज उसको मालूम है कि उसके अंदर फायर का एलिमेंट है. उसके बाद क्या होगी? स्लोली द रॉकेट गेट्स लॉन्च्ड. उसके बाद भी धरती पूरी कोशिश करेगी उसे नीचे खींचने की, पूरा एफर्ट मारेगी, पूरा ट्राई करेगी. अल्टीमेटली अपने फायर के साथ रॉकेट एक लेवल जाएगी, उस लेवल पे अर्थ भी कंट्रोल हो जाएगा, धरती को भी कंट्रोल नहीं होगा, नो कंट्रोल. उस चला गया उधर जाके शायद रॉकेट वापस देख के हंसेगी, शायद तू क्या रोकी मुझे, शायद हंसेगी, आई डोंट नो, राइट? It doesn't argue, it doesn't try, because it knows that it has the fire. The same is the case with you and me, because I'm not a rocket scientist, I don't know how many kilojoules of energy the rocket expels, but I'm damn sure, damn confident that the dream energy that we experience is crores of times more powerful than the rocket energy. कोई भी रोक नहीं सकता आपको, अगर आपको ड्रीम है तो. जोक नहीं. अगर आप एक्सक्यूज ले रहे हैं कि नहीं यार मैं एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू डू दिस बट माय फ्रेंड, यू डोंट हैव ए ड्रीम. एक्सक्लेमेशन मार्क आ रही है तो ड्रीम नहीं है. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक. अगर ड्रीम है तो कोई एक्सक्लेमेशन नहीं, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, सिर्फ हंसी होगा फेस पे, दैट्स इट. And you'll be doing your work and you'll not have any questions. You know that you are a winner sitting here. That was it, guys. I mean, that was, and I tell you, I strongly recommend you, if someone has stopped dreaming here, after going home, get in touch with all the people sitting in the front rows, because they are the real dreamers. I know that it's not easy to dream. मुझे कार चाहिए, मुझे Mercedes Benz करने, ये सब सपने नहीं है. It's not easy to identify your dream.
Get in touch with these people. Only through your association through a real dreamer, you will come to know what a dream is, and that's how you become a real dreamer. And I recommend you start dreaming again. For most of us, it's for the first time we'll start dreaming, right? That's what Benjamin Franklin, a famous philosopher, that's what he said. Most people die at the age of 25, but they are buried at the age of 75. समझ आए आपको? बहुत सारे लोग 25 के एज में मर जाते हैं. उसका मतलब क्या है? जब भी द मोमेंट यू स्टॉप ड्रीमिंग, सपना जब आपके दिमाग में खत्म हो जाता है ना, सपना खत्म होके मैकेनिकल लाइफ शुरू होता है, दैट्स द मोमेंट हम मर जाते हैं. एंड 75 एज में जब ऑक्सीजन स्टॉप हो जाता है, तब हमारा शरीर को अंतिम संस्कार करते हैं. Let that not happen. That's a fact. I see so many people out there who die young, but they are buried old. That's it. Let that not happen, guys. Start dreaming, because dream is the key. Dream is the secret. Dream is everything. And I ultimately believe that it's all about dreaming, achieving a dream, again dreaming and achieving it, and again dreaming. That's what Bill Britt says. When we die, we should be left with one dream unfulfilled, because we are dead. एक सपना को छोड़ के हमें मर जाना चाहिए, because उसी फाइट में हम चले जाएंगे, right? That's how our life should be. It was awesome talking to you. Go out and start dreaming. Check there. Good luck.